8.9 we will start, right? We are starting with second exercise for quadrilateral instead of the first one. So this is the midpoint formula. This is sometimes called midpoint formula. And there's another name for this, which I have realized while teaching US students, midpoint formula. And this is also called, outside it is called mid segment formula. And you will be amazed that the concept is same, but what happens, formula or you say theorem, whatever you like to say. What happens, the type of questions are totally different. In India, we see the kind of questions are majorly proving, okay? But there, the kind of questions are different. They are majorly on the finding of the variables, the value of variables. It's majorly numerical, okay? And here it is proving part. So that's how it is different. So we will go through it. So midpoint formula. So let's start it. So किसी ने स्कूल में कर रखा है ये पहले? ऑब्वियसली कर रखा होगा। हाँ भाई, कर रखा है किसी ने? बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये तुम्हारे उसमें भी यूज होने वाला है, 10th में भी आने वाला है, ठीक है? और 10th में बोर्ड्स होंगे, उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा. So it's very important to understand this formula. Okay, so let's go through it. First of all, let's read this statement. Someone read this statement. Kamna, how about you do it? The line segment joining the midpoint of two sides of triangle is parallel to the third side. So if I write the given part only, I'm not doing any proof, I'm just trying to understand this theorem for now. If there is a triangle, and there are two midpoints, let's call it ABC first of all. Let's call this triangle ABC. And there are two midpoints. Let's call them D and E. What are midpoints? These two are equal and these two are equal. Then the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. And I'm adding one more thing to it, and half of the third side. It's the result of this, but we will prove that also. Half of the third side. बहुत ही important है, note कर लेना. I don't know what you will do, just write it down somehow. So now, what is given first of all? The given part. The given part is D and E are midpoints, right? D and E are midpoints. Or you can say D and E are midpoints of AB and AC. In either way, you can say this also, that AD is equal to BD because of the midpoint thing, and A is equal to C. This is given. Okay. To prove, what we need to prove? We need to prove that the line segment joining these two midpoints, that is this one, must be parallel to the third side. Which third side? This third side, right? So DE is parallel to the third side. We have to prove that, and which I added on my own. That's the result. It is half of the third side that we have to prove. So that's the thing we have to prove. इतना सामने आया बच्चों, first of all, then we'll start doing the proof. Yes. Everyone comfortable up till now? Yes, sir. Okay, so you have to be like army person. Yes, sir. Okay, तभी मेरे को पता चलेगा कि तुम लोग यहाँ पे हो. Okay. Now, before moving ahead, I like to introduce you to something called parallelogram and how we prove parallelogram. There is one way to prove parallelogram. There's many ways actually, but I'm going to use this way to prove in here. I will use that property. Suppose there is this ABCD and AD is parallel to BC and AD is equal to BC. Then we can say that ABCD is a parallelogram. So that means that if a pair, if only one pair is proved parallel and equal, then it can be said the quadrilateral is a parallelogram. Okay, just one pair. अगर एक pair के लिए show कर दो parallel और equal तो वो parallelogram हो जाता है. That's the property. So let's see how we will use that and उससे कैसे prove हो जाएगा. Let me take a different color, making the whiteboard colorful. Solution. Okay, solution से पहले कंस्ट्रक्शन. तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होगी? यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यहां से ऐसे पैरेलल बनानी है, बिल्कुल एक लाइन पैरेलल बनाएंगे. सर हमें कैसे पता चलेगा ये करना है? अरे भाई फर्स्ट टाइम कर रहे हो, थोड़ा प्रैक्टिस एक दो बार देख लोगे, आराम से पता चलेगा. तो भाई हमने क्या करा, हमने ड्रॉ किया. लेट्स कॉल इट समथिंग, लेट्स कॉल इट एफ. ओके, लेट्स कॉल इट एफ. ड्रॉ सी एफ
parallel to what? BD. Okay, draw CF parallel to BD. So यहाँ पे तुम देखोगे इसको अगर मैं आगे join कर दूं ऐसे and join, and instead of saying join, extend DE to meet CF. Okay, at F only if you want, or the other point you want to take. I'm doing it for F only. Okay, so this is the construction. अब हमें फायदा क्या होने वाला है इस कंस्ट्रक्शन में वो सब देखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर BD और CF पैरेलल हो गए हैं, ओके, दैट मींस BD कह लो या फिर AB कह लो, एक ही बात है. अगर BD लो इसके पैरेलल या फिर इसके आगे भी एक्सटेंड कर दो, बात तो एक ही है, दोनों पैरेलल रहेंगे. तो अगर मैं अब प्रूव करूं, ओके, लेट्स डू द प्रूफ. So I can first of all say that this angle must be equal to this angle. How come? If these two are parallel and that is a transversal, this is alternate interior angles, right? So I can say angle ADE is equal to angle CFE. Why? Alternate interior angles, because you have taken by construction that CF is parallel to BD, right? Okay. Also, now let's try to prove congruency in these two triangles. Why we are doing this? Let's have some patience and mind the chain वाला जो पीछे बेच रहा है. ADE and triangle CF. अगर इन दोनों में देखेंगे तो एक तो मैंने पहले ही ले लिया ये alternate angle से. Other thing I can say that this is equal to this. Can someone tell me why these two are equal? Vertically opposite angle. Good. Angle AED will be equal to angle CEF. This was already, you can name it 1 if you want, using 1. This is from vertically opposite angles, as Kamna said. And the next one you can use is AE is equal to CE, because these are the midpoints, right? AE is equal to CE. Can someone tell me which rule will apply here for congruency? क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? Angle, side angle. No. A side is not in between A and S. So AAS, remember? AAS. Yes, sir. So AS, side is not in between. So we will say AAS, okay? So by AAS, I can say the triangle ADE is congruent to triangle CEF. अब सर आपने ये दोनों congruent क्यों करे? इसका फायदा क्या हुआ? बहुत फायदा हुआ. देखना अभी क्या फायदा. इससे I can take one thing, that this side AD is equal to CF. Okay, I will take AD equal to CF by CPCT, of course. So by CPCT, AD is equal to CF. Okay, something magical is about to happen. AD is equal to CF, and I already know that this guy is equal to this guy because this is the midpoint, right? So I already know that my AD is equal to BD because D is the midpoint. D is the midpoint. Now you people tell me, suppose this is 2 and this is 3. This guy is equal to AD and this guy is also equal to AD. What does that imply? Yes. अगर दोनों सेम चीज के बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है? वो भी बराबर हो जाता है. आपस में बराबर, right? So from second and third, you can say that they both are equal from second and third. Okay, amazing. अब तुम्हें देखो क्या फायदा हुआ. CF और BD बराबर भी हो गए और CF और BD तुमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल भी लिए थे. तो इससे क्या पता चलेगा? देखो CF इक्वल टू BD भी हो गया, CF पैरेलल BD भी है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इफ यू रिमेंबर. तो इससे हमें ये पता चलता है अगर एक पेयर इक्वल पैरेलल होता है तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो क्वाड्रेटल नीचे वाला है BCFD, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम. Parallelogram. So we can say that this is a parallelogram. BCFD is a parallelogram because one pair is equally parallel. लेकिन हमें पैरेललोग्राम तो प्रूव नहीं करना था, हमें तो प्रूव करना था ये कि भाई वो पैरेलल थर्ड साइड के. तो भाई हो तो गया. देखो अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है नहीं होती? तो DE पैरेलल होगा BC के? नहीं होगा. DF पैरेलल होगा BC के, लेकिन उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा. So I can say from this I can say that DF is parallel to what? DF is parallel to BC and that implies D is parallel क्योंकि उसका एक पार्ट ही तो है वो.
because opposite sides of a parallelogram are equal. Sorry, parallel. Equal as well as parallel. Here we are using parallel, right? Opposite sides of a parallelogram are parallel. I know it is lengthy. You're doing this the first time, so I'm going to repeat it. अभी हमने first part ही prove करा है theorem का. Second part बहुत ही छोटा है, don't worry. So let's repeat it, okay? Let's repeat. जिसको नहीं समझ आया है फिर से देख ले अच्छे से. समझ आ गया होगा लेकिन थोड़ा इधर-उधर हो रहा है क्या करना है कब क्या. So let's go through it again. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. Second part we will do later on. So ये midpoints दे रखे हैं हमें और हमें प्रूव करना है कि D पैरेलल है BC के और हाफ भी है वो बाद में करेंगे. तो हमने क्या किया सबसे पहले बच्चों हमने मतलब मैंने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन CF पैरेलल टू BD, ओके, और एक्सटेंड कर दिया D को यहाँ तक ताकि वो F पे मीट हो जाए. तो हमें प्रूव करना है कि DFCB क्या एक पैराग्राम, उससे क्या हो जाएगा ये इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना. इनडायरेक्टली अगर तुम समझना चाह रहे हो कि मैं अब वो सब क्यों कर रहा था, मुझे किसी भी तरीके से ये नीचे वाले क्वाड्रेटर को पैराग्राम प्रूव करना था. अब एक जो है एक मैंने पैरेलल ले लिया है, तो अगर एक ये इक्वल भी आ जाए तो मेरा ये पैराग्राम बन जाएगा. तो वो लाना है अब कैसे, उसके लिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्वेंस शो करने की कोशिश करी. प्रॉब्लम वाज कि मेरे पास बस क्या था, मेरे पास बस एक ही चीज था, राइट. आई ओनली हैड वन थिंग, सॉरी टू थिंग्स, अ वर्टिकल अपोजिट एंगल एंड अ साइड. इसलिए मैंने क्या किया, जब पैरेलल वो अपोजिट साइड्स पैरेलल थी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब देखे तो एक और ए मिल गया मेरे को, राइट. तो पहले ही मैंने लिख दिया इसको तुम्हारे लिए. अब इन दोनों ट्राइंगल में देखा तो ए ए वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये मिड पॉइंट से, तो ए ए एस से दोनों क्या हो गए, कॉन्वेंट हो गए. अच्छा, अब मैंने ये रियलाइज किया कि भाई देखो ये दोनों बराबर हैं. अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं सीपीसीटी से तो होगा क्या, ये भी इसके बराबर और ये इसके बराबर सीपीसीटी से, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे चाहिए मेरे को. सो व्हाट आई डिड, मैंने एग्जैक्टली वही चीज करी, सीपीसीटी से एडी बराबर कर दिया सीएफ के, और उसके बाद मुझे पता है कि ये दोनों बराबर हैं क्योंकि वो मिड पॉइंट है, दोनों सेम चीज के बराबर, तो आपस में बराबर, जो मेरे को चाहिए भी था पैराग्राम प्रूफ करने के लिए. तो इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया कंस्ट्रक्शन से, तो नीचे वाला क्वाड्रेटर पैराग्राम बन गया. अब पैराग्राम में तो कोई साइड्स पैरेलल होंगी, बेशक उसका पार्ट ले लो और ये पैरेलल प्रूव हो गया. यस, जिस इसको सामने आया से यस सर, जिस इसको नहीं आया से टेल मी अगेन सर. यस, बताओ भाई, आई कैन नॉट हियर यू. सर आ गया समझ. रो क्यों है सुशांत, थोड़ा खुशी से गया. सर आ गया, सर हमारे सर आ गया सामने. तो बच्चे हो, यू शुड बी मोर एनर्जेटिक देन, पता नहीं मैं इतना एनर्जेटिक क्यों रहता हूँ. यस सर, कामना का आ गया यस सर, तुष्टि का आ गया यस सर, बाकी कहाँ है यस सर. अरे सर कुछ, हाँ गुड, कोई पैर वैर कुछ भी बोलो, बस बोलो यस. यूज द चैट फीचर. यस गुड, गेटिंग द चैट फीचर, गुड. So did you people get it? Okay. Now the second part, which I put it on my side. Now this is also being given the NCERT, लेकिन प्रूव नहीं किया गया, और ये सबसे ज्यादा यही यूज होता है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है, और वो ही नहीं दे रखा. तो देखो हाफ ऑफ द थर्ड साइड कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ही इजी है. मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाफ ऑफ द थर्ड साइड. मैंने अभी तक क्या प्रूव कर दिया है कि नीचे वाला पैराग्राम है और ये लाइन इसके पैरेलल है, वो होगी पैराग्राम है. तो अगर BCFD इज अ पैराग्राम बच्चों, तो अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी. DF मैं कह सकता हूं भाई BC के बराबर है, कह सकता हूं नहीं कह सकता. यस भाई, कोई दिक्कत यहां तक. DF कैन बी इक्वल टू BC, राइट. एक और चीज, यस सर. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, राइट. तो सिंस ट्राइंगल ADE was congruent to triangle CF, I can say कि DE भी इक्वल है किसके, EF के, CPCT से. देख भी सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग बैठ रहा है बिल्कुल, EF बाय CPCT. ये भी मैंने इक्वल कर ली, क्यों कर लिया अभी सामने आएगा. अब देखो DF BC के इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, नाउ लेट्स डू वन थिंग. ये जो चीज है इसको दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, कहीं ना कहीं से हाफ तो डालना ही है, दोनों तरफ हाफ कर देते हैं. अगर दोनों तरफ करते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. हाफ ऑफ DF, दैट्स DF दैट्स E, ओके. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, E है, यहाँ पे F है.
हाफ ऑफ डी एफ, अब ये दोनों मेरे बराबर हैं तो मैं हाफ ऑफ डी एफ को ये लिख सकता हूँ डी, क्योंकि दोनों आधे आधे हैं, तो हाफ ऑफ डी एफ को मैंने लिख दिया डी ई, और इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो प्रूव हो गया मजे मजे में। डी इज इक्वल टू क्या, हाफ ऑफ बी सी, एंड वी आर डन। यस, नाउ अगेन यू हैव टू से यस सर, और अगेन रिपीट इट सर। Yes, sir. Yes, sir. Not just yes sir, you understood it, that's why yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So this I am repeating that part over again. This was a parallelogram. मुझे क्या प्रूव करना है कि ये डी भाई साहब इसके आधे हैं, सो डी एफ इसके इक्वल होगा बीसी के सबसे पहले, क्योंकि पैराग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब मैं इन दोनों को बराबर कैसे करा, सीपीसीटी यूज किया, उसका जो पहले हमने ट्राइंगल को कॉन्वेंट कर रखा था, बाय सीपीसीटी दोनों इक्वल हो गए। अब इस पे दोनों तरफ हाफ लगाया, तो ये हाफ करा तो डी हो गया, और हाफ बीसी। देखो अभी तो सामने आ रहा है, बट अ डे आफ्टर 2 ये तुम इसको भूल जाओगे, गारंटेड भूल जाओगे। तो एक पेपर रखना है, क्योंकि एग्जाम में पक्का ही आता है 5 नंबर का, ठीक है। एक पेपर रखना है, उसमें इस थ्योरम के प्रूफ को लिख के रखना है, क्योंकि ये पक्का ही आता है, गारंटेड समझ लो तरीके से, ठीक है। तो दिस, अब मैं इसका एप्लीकेशन समझाने वाला हूँ। मे बी आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें, आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि इसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ फिर सेकंड एक्सरसाइज के लिए। तो अब जैसे मैं एक दिखा रहा हूँ तुम्हें, तुम लोग बताओगे, ठीक है। मान लो कि ऐसा है, ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मेरे पास ये 5 है तो ये कितना होगा, 5 है तो remember the relation, it is parallel and half of this guy, तो BC कितना होगा, अरे भाई इतना इतना डिफिकल्ट है। DE 5 है, what will be BC if you know this relation? BC कितना होगा इसका, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ D। 10. तो इसमें क्या है, हलवा क्वेश्चन है, तो Ten. छोटा बच्चा बता देगा, रास्ते में कोई जा रहा है उससे पूछ लो, वो बता देगा, तो अगर ये रिलेशन दे दूं। चलो एक और देखो, अब मुझे तुम लोग बताओगे, मेरे पास 20 है, ये कितना होगा, 40. अरे क्या बात है, देखा भैया ने फिर के घुमा दी तुम लोगों को, गलत है बिल्कुल। 10. गधे 10 होगा उधर से भैया आपने इधर से दिया तो मैं भी रजनीकांत हूँ, मैं आधा कहीं से भी कर सकता हूँ ये 20 हुआ ना, ये 20 हुआ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो दिस इज 10। अच्छा लो, जब तक तुम लोग फिर की समझते नहीं जब तक मैं देता रहूँ। चलो बताना, ये 50 है, ये कितना होगा, 100. यस, तो यू आर गेटिंग इट नाउ। ये जो होता है आधा होता है भाई, दिख भी रहा है लेंथ में, ऑफ कोर्स। तुम कैसे सोच सकते कि इतना सा ये इससे 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, हाँ भाई आदर्श रजनीकांत, नॉट पॉसिबल ना। चलो एक और चीज, अब देखते हैं तुम लोग ये भी कर पाते, यू नीड टू सॉल्व फॉर एक्स, ओके। इसको सॉल्व फॉर एक्स का, वी आर प्रैक्टिसिंग दिस थ्योरम सो दैट वी कैन अप्लाई इट फॉर प्रूविंग आल्सो देन लेटर ऑन, यू हैव टू प्रूव दिस, sorry, you have to find the value of x, okay. If you're not able to use the microphone, use the chat feature, okay. Okay, try to find the value of x. Hopefully तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था बचपन में, उसी का यूज करना, लीनियर इक्वेशन। First of all, you have to set a relation, right? There you will get a relation that 2x minus 1 is half of 4x plus 16.
यस एनीवन? कैसे करेंगे इसको? 2x माइनस वन हाफ होगा बच्चे 4x प्लस 16 के, राइट? ये समझ में आया कैसे किया हमने? मिड पॉइंट Yes, थ्योरम, sir. मिड पॉइंट थ्योरम का, राइट? तो अब मैं इसको हाफ कर दूंगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाफ टाइम्स 16 है, हाफ टाइम्स 4x, अंदर लेगा इसको। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सर कैसे दे देते? 2 टाइम्स 2 दस 2x, 2 टाइम्स 8। ओके, यहाँ पे x कट रहा है, जब तुम लोग ऐसे कर रहे हो इसमें तो x 0 आ गया, राइट? तो क्वेश्चन ही हलवा हो गया, राइट? x 0 ही आ जाएगा क्योंकि तो कट जाएगा भाई, राइट? My bad, I guess. So how about I change it to something else? I change it to 6x then. Okay. And this is 16 again. So let me change that to 6x. So that's 3x, then 8. If I do the half, 2x minus 1 is equal to 3x plus 8. इसको कैसे solve करेंगे? इस भाई साहब को इधर ले जाओ, इस भाई साहब को इधर ले जाओ। -9 is equal to x. तो x की वैल्यू -9 आ रही है। इस तरीके से हमने एप्लीकेशन समझ ली इसको, थ्योरम की, मिड पॉइंट थ्योरम की। हाँ भाई, पहले बड़ा कैसे यूज करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम? हाफ होता है थर्ड साइड का और पैरेलल भी होता है। अब मुझे बताओ इसमें, जल्दी से बताना, ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है और ये 7 है। क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी? नो सर, भाई क्योंकि ये 7 है ना। मिड पॉइंट्स नहीं है, ओनली द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, राइट? जब तक एक्सरसाइज पे मूव नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो जाए मिड पॉइंट थ्योरम का। तो मुझे लगता है मिड पॉइंट थ्योरम का तो हो गया है, अब कन्वर्स पे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द कन्वर्स नाउ। कन्वर्स इसका उल्टा होगा, so let me plug in that converse for you. So converse ये है, इसका हमने you can read it out again. Okay, sir. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. So, अब क्या हो रहा है? अब उल्टा हो गया है। अब तुम्हें पैरेलल दे दिया है और एक मिड पॉइंट रखा है, तुम्हें प्रूव करना है जो दूसरी जगह इंटरसेक्ट करे वो मिड पॉइंट है। मान लो ये ट्राइंगल एबीसी and this is a midpoint, the line drawn through the midpoint of one side of triangle. So there is a midpoint, then line drawn through the midpoint of one side of triangle parallel to another side, that means it is going parallel already parallel to BC. Then we have to prove that it bisects the third side. हमें ये प्रूव करना है कि इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि D तो मिड पॉइंट है, हमें प्रूव करना है E भी मिड पॉइंट होगा जब DE पैरेलल होगा BC के। So this time what is given, AD is equal to BD is given, and DE is parallel to BC, that's also given. You need to prove that AE is equal to C, or you can say E is the midpoint. E is the midpoint of AC. Yes, इतना सबको समझ में आया? अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों। Tell me fast. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे होगा, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन है दोनों में, ठीक है? दोनों में सेम कंस्ट्रक्शन, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन करोगे। क्या कंस्ट्रक्शन सर? यहाँ से एक लाइन बनाओगे पैरेलल, जैसे CF बनाई थी पिछली बार, और इसको एक्सटेंड कर दोगे, इस पे F पे मीट करेगा। ड्रॉ CF, लेकिन इस बार कम होगा टास्क क्योंकि छोटा हो जाएगा ये। CF पैरेलल टू BD and extend DE to meet CF. ओके, सामने कर दिया। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, प्रूफ समझ लेना क्योंकि दोनों आगे तो बल्ले बल्ले। सबसे पहले हमारे पास DE पैरेलल BC के ऑटोमेटिकली पहले से दे रखा है, तो इसका मतलब इसको अगर मैं एक्सटेंड भी कर दूं DF तो वो भी पैरेलल होगा BC के, राइट? तो ये तो पैरेलल है BC के, और BD पैरेलल है CF के कंस्ट्रक्शन से, अभी अभी जो हमने किया कंस्ट्रक्शन।
सो अगर दोनों साइड अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो क्या बन जाएगा ऑटोमेटिकली, BCFD will be is a parallelogram since क्या opposite sides are parallel here. इतना सबको समझ में आया? yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now अब कैसे करेंगे सर? बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमें फिर से कॉन्वेंसी करनी है इन दोनों ट्राइंगल्स में। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्वेंसी करोगे तो किस तरीके से कर पाएंगे वो देखते हैं। एन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CEF। यस, बताओ क्या क्या देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में? क्या क्या दिख रहा है इन दोनों ट्राइंगल में? सिर्फ पहले वाले की तरह ये दोनों दिख रहा है क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेटिव एंगल, राइट? CFE ऑल्टरनेटिव एंगल। और पहले वाले की तरह ही वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, एंगल CF। तीसरी चीज नहीं मिल रही, जैसे उसमें भी तीसरी चीज निकाली थी, इसमें भी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी? देखो, ये जो तुमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है इसका फायदा उठाते हैं। देखो, मेरा जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम के। BD किसके इक्वल होगा? BD CF के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। BD CF के इक्वल, और BD मेरा इसके भी इक्वल दे रखा है क्योंकि मिड पॉइंट है। BD मेरा किसके इक्वल है? BD मेरा AD के भी इक्वल है क्योंकि वो मिड पॉइंट है BJ। अब ये भी BD के इक्वल और ये भी BD के इक्वल, मतलब CF जो है AD के इक्वल हो गया। तो तीसरी चीज मिल गई हमें वेरी क्लेवरली। देखो, CF AD के इक्वल मिल गया, तो ये तो तीसरी चीज मिल गई। और सेम प्रॉपर्टी से देखो कॉन्वेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो बाय AAS triangle ADE will be congruent to triangle CFE। सर फिर से कॉन्वेंट क्यों करा? इसका फायदा क्या होगा भाई देखो, बाय CPCT नाउ आई कैन से दैट दिस गाय इज इक्वल टू दिस गाय। ये तो प्रूव करना था मिड पॉइंट, इसको तो कॉन्वेंसी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये तो प्रूव करना था मिड पॉइंट है इसका, एंड वी आर डन। यस, किस को पल्ले पड़ गया भाई? सर हो गया। हो गया। Yes, sir. दो बच्चे और Yes, sir. गुड। गोइंग टू रिपीट इट दो अगेन। हमें इस बार क्या प्रूव करना है कि एक मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल जा रहा है। हमें प्रूव करना है कि ये भी मिड पॉइंट होगा। फिर तो हमने सिमिलरली फिर से वही कंस्ट्रक्शन करी, लेकिन इस बार पैराग्राम इजीली प्रूव हो गया कि ये इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया और ये इसके पैरेलल दे रखा है, तो ये पैराग्राम हो गया। अब मैंने कॉन्वेंसी जब देखना शुरू किया जिससे हमें ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे, उसके लिए दो चीजें मिली, तीसरी नहीं मिली। तो तीसरी हमने पैराग्राम से निकाल लिया कि भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल दे रखा है, तो दोनों इसके इक्वल हो गए, तो आपस में इक्वल हो गए। दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हमें AAS मिल गया, दोनों कॉन्वेंट हो गए, तो CPCT से दोनों इक्वल हो गए, एंड वी आर डन। तो आज हमने, देख लो ध्यान से, आज हमने मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, उसका प्रूफ समझ लिया, उसको अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में पहले तुम लोगों से मैं करवाऊंगा ये, ठीक है, लाइव मैं बैठा हूँ, तुम लोगों से पूछूंगा इसके बाद क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, तो अच्छे से कर लेना इसको। And I'm going to upload this on YouTube so you can watch it again. Okay, so that's it for today. Take care. Good evening.